Students, and welcome back to the English class. Now, what we were doing the the Browning version by Terence Rettingen. Okay, children. Now, what we will do, we will actually know the summary. We'll actually study the summary, so that we could understand. Uh, we could have a better understanding of the play. Okay, children. Now, can we start? Now, let us study about the author. Now, who's the author? Sir Terence Marvellin Rettingen. Who's the writer? Sir Terence Marvellin Rettingen, CBE, was a British dramatist. So, who was he? He was a British dramatist. He was one of England's most popular mid 20th century dramatists. Okay, who are dramatists? Who write drama, जो ड्रामा को लिखते हैं. His plays are typically set in a middle class background, children. He wrote The Winslow Boy, the Browning version, The Deep Blue Sea, and The Separate Tables, among many others. He was born on 10th June 1911, South Kensington, London, United Kingdom, and children. He died on 30th November 1977, Hamilton, Bermuda. Okay, children. So this is all about Mr. Terence Marvin Rettingen. Okay, children. Now, these are the character Mr. Crocker Harris, Mr. Frank Hunter, John Taplow and Crocker Harris, जॉन टैप्लो एंड फ्रैंक हंटर. तो अगर हम ये स्टोरी जब हम पढ़ते हैं या ये प्ले जब हम पढ़ते हैं, इट्स अ वेरी लेंदी प्ले चिल्ड्रन. बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत लंबा लेंदी प्ले है. बट हमने जो ये आपकी बुक में दिया गया है, इट्स समवॉट a scene from that play. Okay, children. Now we will move on to next slide. Now, relevance of the title. The title, Browning's version, is first a direct reference to the fact that the text is an adaptation of Agamemnon's tragedy written by Aeschylus. Okay, it means that the text is an adaptation by whom? By Robert Browning of the origin. Now, Mr. Cocker Harris is betrayed, ठीक है, like Agamemnon by his wife. Okay, children. Now you can see the picture. Next. Sorry, children. It's been a little bit of cut. Plot. Andrew Crocker Harris is a classic teacher, old teacher at an English boys' school. After 18 years of teaching here, 18 साल बाद, today is his last day before moving to a position at another school. Okay, the students speculate on why he is leaving, but do not much care, since despite being academically brilliant, he is generally despised and being strict, stern, and humorless. तो the students do not care कि ये क्यों जा रहा है, because he is very stern, बहुत ज़्यादा strict है. They have nicknamed him, nickname मतलब जो दूसरा नाम देते हैं, है ना, कई बार हम अपने टीचर्स को दे देते हैं, the Croc. Even the school administrators treat him poorly regardless of his long tenure. Okay, regardless of his long tenure. Right? Miley Crocker Harris, his wife, is younger, vivacious and quite different from her husband. तो जो मिली है वो क्या है, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. She no longer loves him, but rather loves Frank Hunter. Now, whom does she love? Frank Hunter. Another teacher, yet, despite having an affair with him, so she has an affair with him. Okay. He knows he's not in love with her. So she knows that Frank Hunter does not love her. Okay. On this last day, one
student named Taplow, who does not hate Crocker Harris but feels sorry for him, gives him a small going away gift, a copy of the translation by Robert Browning of Aeschylus' ancient plaint Agamemnon. Okay, the gift brings about a series of action which make Crocker Harris reflect on his past, contemplate his future, and evaluate how he's going to finish his tenure at the school. Next. Now, the Browning version summary. The scene is a set of boys' public school where Taplow arrives to do extra work on the last day for Mr. Cocker Harris. ठीक है, तो अब कौन है ये सीन कहाँ ओपन होता है? एक बॉय पब्लिक स्कूल्स में, बॉयज़ के पब्लिक स्कूल में होता है, जहाँ पर एक बच्चा है, उसका नाम है जॉन टैप्लो, और वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए, वो डिटेंशन पे नहीं है बट एक्स्ट्रा वर्क पे है। किसके लिए? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए, बिकॉज ही हैज़ मिस्ड अ डे बिफोर, क्योंकि पिछले हफ्ते उसने एक ही क्लास मिस कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो इल था। ही इज़ वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस हु हैज़ नॉट येट अराइव्ड। और वो किसके लिए वेट कर रहा है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए वेट कर रहा है, जो कि अभी तक नहीं आए। Another teacher, Mr. Frank, finds Taplow waiting in the room and starts talking to him. तो जैसे एक और टीचर होते हैं, उनका नाम क्या होता है? मिस्टर फ्रैंक, जो कि क्या करते हैं, उसको देखते हैं और उसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। किसके साथ? टैप्लो के साथ, राइट? Taplow introduces him and informs that he is a student in the lower first grade. तो Taplow बताता है कि वो कौन सी क्लास में? लोअर फिफ्थ ग्रेड में। अब वो 16 साल का बच्चा है, पर फिर फिफ्थ ग्रेड में, वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम दूसरी होती है चिल्ड्रन, ठीक है? तो इट डज़ नॉट मीन ही इज़ इन फिफ्थ क्लास, ओके? इट टेल्स दैट ही वुड स्पेशलाइज नेक्स्ट टर्म इफ़ ही गॉट प्रमोटेड। तो वो बोलता है कि अगर मुझे प्रमोशन मिल जाती, मैं प्रमोट हो जाता हूँ, या तो क्या होगा, मुझे उसको रिमूव मिल जाता है, जो कि वर्ड इज़ यूज इन दी टेक्स्ट, दैट ही विल स्पेशलाइज इन साइंस। और मिस्टर फ्रैंक हंटर साइंस टीचर हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस यूजली रिवील्स द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, अनलाइक एवरी अदर टीचर, ठीक है? He follows the rules and regulations strictly, and now he follows all the rules and regulation very strictly. Now Mr. Frank is surprised, ठीक है? मिस्टर फ्रैंक हंटर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं। He admits that the headmaster announces the result on the last day, but that's not a criteria, ठीक है? तो वो एडमिट करता है कि हेड मास्टर ने अनाउंस करते हैं, बट सारे के सारे टीचर्स जो होते हैं वो पहले ही अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि आर दे गोइंग टू गेट प्रमोटेड और नॉट। Taplow says that this is the only Mr. Crocker Harris who abides by this rule of not telling the students about their result before they are officially अनाउंस। तो सिर्फ और टीचर्स तो बता देते हैं कि दे आर रिमूव्ड और नॉट। रिमूव का मतलब क्या था? प्रमोटेड और नॉट। बट सिर्फ जो मिस्टर कॉकर हैरिस हैं चिल्ड्रन, वो नहीं बताते, बिकॉज इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ही गोज बाय द रूल्स ऑफ द स्कूल। Now, Mr. Frank asked Taplow as to which subject he would specialize if he got favorable result. तो बोलता है अगर he gets promoted, मिस्टर फ्रैंक हंटर पूछते हैं किसको? टैप्लो को पूछते हैं कि अगर इमेजिन कर तुझे प्रमोशन मिल जाता, तो प्रमोट हो जाता है, तो तू कौन से सब्जेक्ट लोगे? टैप्लो सेज साइंस। तो टैप्लो बोलता है आई टेक साइंस बिकॉज इज लॉट ऑफ इंटरेस्टेड इन साइंस। मिस्टर फ्रैंक लैमेंट्स एंड ही गेट्स ऑल स्लैकर्स। एंड मिस्टर फ्रैंक को ये बात अच्छी नहीं लगती है, नहीं है कि जो सारे के सारे लेज़ी बच्चे होते हैं ना, वो क्या है? साइंस पढ़ते हैं, राइट? हु आर नॉट विलिंग टू स्टडी, हु आर नॉट हार्ड वर्किंग। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट। नाउ Taplow wants to specialize in science because find the subject extremely interesting. तो Taplow बोलता है कि नहीं सर, मुझे तो क्या पढ़ना है, मुझे साइंस ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फ्रैंक ऑन द अदर हैंड डजंट लाइक व्हाट ही टीचेस इन द स्कूल। और फ्रैंक को ना पसंद नहीं है कि व्हाट ही लाइक्स व्हाट ही टीचेस इन द स्कूल। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि चिल्ड्रन द स्कूल गोज बाय द ओल्ड मेथड, नो प्रैक्टिकलिटी इज देयर। तो व्हाट डज फ्रैंक डज नॉट लाइक इट। Frank doesn't like what he
teaches in the school. तो फ्रैंक को पसंद नहीं what he teaches in the school, but Taplow says that it must be much better than this muck. मतलब वो बुक दिखाते हैं. कौन सी बुक रहती है? Agamemnon by Aeschylus, indicating the book in his hand which was Agamemnon बाय एस्चलिस. तो वो उस बुक को मक बोलता है कि दिस इज़ दी बुक दैट आई एम स्टडिंग and this is very boring. I am not interested in this book. And what is the book's name? Agamemnon, Memnon, and whose written is Aeschylus. Next. Now Mr. Frank is surprised that Taplow is calling such a great classic a muck. अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ग्रेट क्लासिक ग्रेट ट्रेडिशनल बुक अ मक. ही फील्स दैट टैप्लो साउंड्स अ लिटिल बिटर एज ही हैज़ बीन कैप्टन. तो वो बोलता है कि शायद ये ना थोड़ा बुरा लग रहा है या इसको बुरा लग रहा है क्योंकि ये कैप्टन है. कैप्टन मतलब डिटेंशन पे है. डिटेंशन अगर कोई स्टूडेंट पनिश हो जाता था, ठीक है, तो उसको स्कूल के बाद काम करने के लिए रुकवा देते थे. तो दैट इज़ कैप्टन. ठीक है ना. टैप्लो इन्फॉर्म्स हिम दैट ही इज़ देयर फॉर एक्स्ट्रा वर्क. तो टैप्लो उसको बताता है नहीं मैं यहाँ पर किसके लिए हूँ? एक्स्ट्रा वर्क के लिए हूँ, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते क्या हो गया था? बीमार पड़ गया था. तो क्या हुआ? जब मैं बीमार पड़ गया था तो फिर मिस्टर कॉकर हैरिस ने मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क पे रखा है. Mr. Frank is more surprised to hear that Taplow is doing extra work on the last day before the end of the term. Taplow informs that he had missed a day of the school the previous week due to illness, so Mr. Cocker Harris asked him to do additional work to compensate for that. तो बोलता है कि एक दिन मैं बीमार हो गया था और मैं स्कूल नहीं आया पाया था, तो इसने मिस्टर कॉकर ने मुझे पूछा कि एडिशनल वर्क करने के लिए बोला है, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट. Mr. Frank tries to comfort him by saying that he would get his result for being sincere. तो वो बोलता है कि अगर तू इतना सिंसियरली काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, and you will be promoted, you will get your remove. But Taplow asserts that such rules does not apply to Mr. Cocker Harris. तो बोलता है कि फिर वो अपने टीचर को, फ्रैंक हंटर को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है. जो मिस्टर कॉकर हैरिस है वो ही डज नॉट get impressed by all these work. He only says that whatever you get, you'll get no more than it, no lesser than it. तुम्हें अपने मेहनत से ज़्यादा नहीं मिलेगा या कम नहीं मिलेगा. Okay children, next. Now the day before, Taplow had asked Mr. Cocker Harris about his result. तो एक दिन वो बताते हैं मिस्टर फ्रैंक को कि एक दिन पहले क्या हुआ था कि मैंने अपने रिजल्ट के बारे में पूछा था. किसको पूछा था? कॉकर हैरिस को. ही टेल्स फ्रैंक व्हाट हैपेंड मिमिकिंग. ठीक है. तो फिर वो अपने टीचर को बताते, उनकी मिमिक्री करके बताते. सो मिस्टर कॉकर हैरिस की मिमिकिंग करता है. माई डियर टैप्लो, और ये वर्ड्स उन्हीं के हैं. माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व. तो बोलता है आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर. कि मैंने उससे ज़्यादा भी नहीं दिया है और इससे कम भी नहीं दिया है. जो तुम डिज़र्व करते हो चिल्ड्रन, मैंने वही दिया है. कौन बोलता है? मिस्टर कॉकर हैरिस. किसको बोलते हैं? टैप्लो को बोलते हैं. Taplow is afraid that Mr. Cocker Harris would have rather marked him down for doing extra work. तो बोलते हैं कि Taplow is afraid that Mr. Cocker Harris would rather him mark down for doing this extra work. According to Taplow, Mrs. Cocker Harris is a different kind of teacher. तो Taplow के हिसाब से जो Mr. Cocker Harris हैं, he is a very different kind of a teacher. He is too strict and hardly human. तो वो किसको क्या बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वो ज़्यादा स्टर्न हैं. एंड क्या हैं चिल्ड्रन? वो बहुत ज़्यादा हार्ड ह्यूमन है. ठीक है. मिस्टर फ्रैंक प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी बट एनकरेज टैप्लो टू इमिटेट हिज टीचर वंस अगेन. दो मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि नहीं, यू शुडंट इमिटेट हिम. तो फिर क्या बोलते हैं? बट वो फिर बताते हैं कि तुम क्या बात कर रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, किसके बारे में? मिस्टर कॉकर के बारे में. टैप्लो आस्क फॉरगिवनेस फॉर बीइंग कैरिड अवे. अब टैप्लो बोलता है, जैसे उनकी मिमिकिंग के बाद बोलता है कि आई गॉट कैरिड अवे, मतलब ही डिडंट हैव कंट्रोल इन ऑन हिमसेल्फ, राइट? सो ही गॉट कैरिड अवे. Mr. Frank asked Taplow at what time he was supposed to meet Mr. Cocker Harris.
तो अब मिस्टर फ्रैंक आस्क करते हैं किसको, टैप्लो से, कि क्या समय था कि मिस्टर कॉकर ने बुलाया था, या डिटेंशन कब तक थी, या ये एक्स्ट्रा वर्क कब तक था। तो टैप्लो बोलता है कि 6:30, सर ने मुझे 6:30 तक बोला गया था। मिस्टर फ्रैंक पॉइंट्स आउट दैट मिस्टर कॉकर हैरिस इज़ ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट। तो बोलता है कि जो मिस्टर कॉकर हैरिस है अभी कितने मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है चिल्ड्रन। एंड सजेस्ट दैट टैप्लो शुड कट एंड एन्जॉय प्लेइंग गोल्फ। तो बोलता है कि नहीं, अब तुम कट कर सकते हो, मतलब तुम यहाँ से जा सकते हो और क्या एंजॉय कर सकते हो, अपना जो गोल्फ उसको अच्छा लगता था वो खेल सकते हो। टैप्लो इज शॉक्ड एट दिस सजेशन एंड ही स्केयर्ड दैट मिस्टर कॉकर हैरिस माइट फॉलो हिम होम। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, जैसे ही मिस्टर हंटर ये बात बोलते हैं तो टैप्लो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना, ठीक है, अगर मैं खेलूँगा तो मिस्टर कॉकर हैरिस क्या पता क्या गुस्सा कर दे और मेरे घर तक आ जाए। ओके चिल्ड्रन, फ्रैंक एडमिट्स दैट ही एनवीज मिस्टर कॉकर हैरिस। अब फ्रैंक एडमिट करता है कि वो क्या है, जेलस है मिस्टर कॉकर हैरिस, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज़ ऑन स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इफेक्ट है स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा बिना वहाँ पर हुए मिस्टर कॉकर के लिए इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। Taplow told him that he never shows his emotion like other teachers and never beats them up like other masters. तो टैप्लो बताता है कि जैसे अदर टीचर्स इमोशंस शो करते हैं वैसा कभी भी नहीं करते। कौन, मिस्टर कॉकर हैरिस अपने इमोशंस कभी भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। और वो अदर टीचर्स की तरह नहीं है कि वो मारे भी। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब जो पर्सन पेन देता हो, ठीक है, थ्रू फिजिकल पेन देता हो दूसरे पर्सन को। तो टैप्लो साफ बोलता है कि मिस्टर जो कॉकर हैरिस है वो क्या है, सैडिस्ट नहीं है। टैप्लो फील्स दैट मिस्टर कॉकर हैरिस इज़ ऑल श्रिवल्ड अप, ठीक है, श्रिवल्ड अप। ही हेट्स पीपल टू लाइक हिम, और उनको पसंद नहीं है कि लोग उनको ज़्यादा पसंद करें। कौन, मिस्टर कॉकर हैरिस को क्या पसंद करे, कोई भी पसंद ना करे, कोई भी बच्चा मिस्टर कॉकर हैरिस को पसंद ना करे। नाउ टैप्लो फाइंड्स इट फनी दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्रैंकीनेस ही समहाउ लाइक्स मिस्टर कॉकर हैरिस। तो टैप्लो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़नी है कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी जो टैप्लो है वो किसको पसंद करता है, मिस्टर कॉकर हैरिस को करता है। नाउ Taplow recalls an incident when Mr. Cocker Harris made one of the classic jokes. अब उसको क्लास में याद आता है कि टैप्लो ने क्या करा था, मिस्टर कॉकर हैरिस ने क्या किया था कि एक जोक क्रैक किया था जो कि बहुत ट्रेडिशनल था, जो कि बहुत लैटिन में था। Nobody laughed, पूरी क्लास में कोई हंसा नहीं। आउट ऑफ द शेयर कर्टीनेस और पोलाइटनेस और कर्टीनेस को दिखाने के लिए टैप्लो हंस पड़ा। दिस प्रूव टू बी अ बैड मूव बाय टैप्लो। टैप्लो बोलता है कि मेरे लिए बहुत बेकार मूव था, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मिस्टर कॉकर हैरिस आस्क्ड टैप्लो टू एक्सप्लेन द जोक टू द होल क्लास। उसने बोला है सिंस कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हें लैटिन समझ में आई और तुमने हंसे भी हो, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी की पूरी क्लास को ये जोक क्या करो, एक्सप्लेन करो। कौन बोलता है, मिस्टर कॉकर हैरिस बोलते हैं किसको, मिस्टर जॉन टैप्लो को। एंटर ऑफ मिसेस माइली कॉकरल हैरिस। और जैसे जैसे वो बता रहा था फिर मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि मुझे बताओ कि कौन सा जोक था, क्या जोक था। तब तक कौन आ जाते हैं, मिसेस माइली क्रॉकर हैरिस। कौन है ये, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के वाइफ है। मिसेस माइली इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। नेक्स्ट, नाउ माइली मिस्टर क्रॉकर हैरिस's वाइफ इज़ अ थिन woman, और वो बहुत पतली हैं। In her late 30s and she's around 30 years old. She's smartly dressed unlike other schoolmaster's wife. और वो बहुत अच्छे से ड्रेस होके आते हैं अदर दैन अदर स्कूल्स जो और टीचर्स की वाइफ हैं। शी कम्स इन अननोटिस, और वो जैसी जब भी आती तो अननोटिस आती हैं, मतलब कोई उन दोनों वो जब कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं मिस्टर कॉकर हैरिस के बारे में तो वो नोटिस नहीं कर पाती। Taplow was still imitating Cocker Harris when Mr. Frank noticed her and broke off suddenly. और जैसी वो अंदर आती है तब मिस्टर फ्रैंक क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। Taplow gets frantic
ठीक है, एंड आस्क, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हुआ, एंड आस्क मिस्टर फ्रैंक इफ़ माइली वुड हैव हर्ड द कॉन्वर्सेशन, तो वो पूछता है कि क्या माइली मैम ने मेरा कॉन्वर्सेशन सुन लिया होगा, क्या वो अब क्या करेंगी, बट मिस्टर फ्रैंक थिंक्स दैट शी डिड, और मिस्टर फ्रैंक भी सोचते हैं कि क्या इन्होंने, जो मिसेस माइली हैं, उन्होंने क्या करा है, ये जो कॉन्वर्सेशन है वो सुन लिया है, राइट। तो अब कौन, टैप्लो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं ये मिस्टर क्रॉकरल को बता ना दे कि क्या हुआ है, राइट। नाउ माइली ऑल्सो आस्क्ड टैप्लो इफ़ ही वाज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, फिर वो पूछती कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। शी इन्फॉर्म्स हिम दैट ही इज़ बिजी एट द बर्सर्स, तो वो इन्फॉर्म करती हैं कि वो क्या है, बर्सर में, बर्सर्स के साथ क्या है, बिजी है। बर्सर कौन है, जो कि एक स्कूल का मनी का ध्यान रखे कि कहाँ पर क्या करना है, चीज़ें कहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ पर नहीं करने चाहिए, एंड माइट गेट लेट, तो वो बोलते हैं कि वो क्या हो, लेट भी हो सकते हैं। शी आस्क्स हिम्स टू, ये बोलती कि 15-20 मिनट के, यू जस्ट गो, ठीक है, एंड गिव्स हिम अ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। टैप्लो इज़ डाउटफुल, अब जब वो बोलती कि गो फ्रॉम हियर, तो वो डाउटफुल होता है। शी एडवाइसेस हिम टू गो अवे फॉर अ क्वार्टर फॉर एन आवर एंड देन कम बैक, वो बता 15-20 मिनट के लिए तुम जाओ और फिर वापस आ जाना। ना टैप्लो इज स्कैर्ड एंड आस्क्ड व्हाट इफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस कम टू नो, तो बोलता है कि अब ऐसा ना हो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पता चल आ गए जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो वो डर जाता है और वो ये बात बोलता है, तो मिली क्रॉकर हैरिस बोलती है, गिव्स हिम रिलीव बाय सेइंग दैट ही वुड टेक दी ब्लेम, बोलते हैं कि मैं ब्लेम अपने पे रखूँगी, ठीक है, तो तुम क्या हो, परेशान मत हो। शी गिव्स हिम अ प्रिस्क्रिप्शन, वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखती हैं जो कि डॉक्टर ने लिखा है, एंड सेंड्स हिम टू द केमिस्ट टू गेट इट फिल, या मेडिसिन लेने के लिए केमिस्ट के पास चली जाती है, एंड ठीक है, कन्विंस टैप्लो एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड लीव्स हैप्पीली, और जब टैप्लो को ये पता चलता है कि ये क्या लेंगी, ये मेरी साइड लेंगी, तो टैप्लो क्या करता है, खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, ठीक है, फॉर 15-20 मिनट्स, और यहाँ तक सीन एंड हो जाता है, राइट। नाउ कैरेक्टर स्केच ऑफ टैप्लो, जॉन टैप्लो। टैप्लो इज़ अ 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, कितने साल का बच्चा है वो, 16 ईयर्स। ही इज़ अ स्टूडेंट इन द लोअर फिफ्थ ग्रेड, तो ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ लोअर फिफ्थ ग्रेड, ठीक है। टैप्लोज कॉन्वर्सेशन विद फ्रैंक गिव्स अस एन आइडिया दैट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ टैप्लो, और जैसे वो बात करता रहता है किससे, फ्रैंक हंटर से, जो कि साइंस टीचर हैं, तो हमें पता चलता है कि व्हाट आर हिज लाइकिंग एंड व्हाट आर हिज डिसलाइकिंग्स। हिज कॉन्वर्सेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट टू द कैरेक्टर ऑफ क्रॉकर हैरिस, तो उसकी कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमें क्रॉकर हैरिस का भी कैरेक्टर स्केच के बारे में पता चलता है। टैप्लो विशेस टू स्पेशलाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, तो टैप्लो क्या करना चाह रहा था, वो सब्जेक्ट ऑफ साइंस करना चाह रहा था। टैप्लो डिसलाइक्स आर्ट्स, स्पेशली द प्लेट अगैमेमनॉन, ही asserts that though the play is not that bad but the way it is taught is terrible, तो बोले कि नहीं नहीं, प्ले बोरिंग नहीं, या मुझे पढ़ना नहीं, प्ले बहुत अच्छा है, बट जिस तरीके से वो पढ़ाया जाता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। Okay, children, he presents his view about Crocker Harris in a very frank and straightforward manner, जैसे कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं लगाता, वो कैसे सीधा मिस्टर क्रॉक बोलता है उनको, क्रॉक मिस्टर भी नहीं बोलता, सिर्फ क्रॉक बोलता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होके उनके बारे में बोलता है। टैप्लो हैज़ अ स्ट्रेंज एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रॉकर हैरिस, ठीक है। ही एडमिट्स दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ही स्टिल लाइक्स क्रॉकर, तो वो बताता है कि इंस्पाइट की मुझे क्या है, आई डू नॉट ही एडमिट्स दैट इंस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कि वो इतने स्ट्रिक्ट है, इतने स्टर्न है, मैं क्या करता हूँ, मैं फिर भी मैं क्रॉकर को पसंद करता हूँ। ही इवन एडमिट्स लाफिंग ऑन हिज पुअर जोक एंड जस्ट टू बी पोलाइट टू हिम। टैप्लो इज़ टू स्कैर्ड एट द आइडिया ऑफ डिसोबेइंग हिज टीचर, अब टैप्लो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है फॉर डिसोबेइंग हिज टीचर। Now, Crocker Harris, in fact, he works for him even in his absence by going to chemist to get a prescription made for him. Okay, even medicine या prescription made for him. Now we'll talk about what Mr. Crocker Harris
The small excerpt from the Browning version revolve around Mr. Crocker Harris, who is a middle-aged student. वो अर्ध उम्र के हैं, right? Although we do not meet him in the play. हमें कुछ नहीं पता है directly. हमें सिर्फ उनके बारे में पता चलता है, but directly हम उनसे मिलते नहीं. We get to know, ठीक है? We get to know about him by the impression that he has made in his mind फॉर ए स्टूडेंट. तो हमें पता चलता है वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं. स्टूडेंट टैपलो, ही टीचेस लिटरेचर. ही हैज़ वेरी गुड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स. Okay, his students are so scared of him that they cannot think of disobeying him even in his absence. So even in his absence, he does not like students disobeying him. Okay, he's a strict disciplinarian. Okay, and he has been nicknamed as Croc by his student. So he has a nickname, a second name given to him. He abides by the rule of the school. तो वो सारे स्कूल के रूल्स फॉलो करता है. He is so adherent to the rules and regulation that he never discloses his students' marks before the headmaster announces the result. Although students are scared of him, but they still love and respect him. Okay. Now, character sketch of Frank. Frank Hunter is Mr. Andrew Crocker Harris's colleague in the same school. तो फ्रैंक हंटर कौन है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के colleague है. He is quite popular in the school amongst children, but he envies Mr. Harris for the fact that he gets his work done in the strictest way from his student, and yet the students have a lot of respect and love for Mr. Harris. तो वो बहुत ज़्यादा जेलस है. किसके बारे में? मिस्टर हैरिस के बारे में. क्योंकि वो बोलता है कि लोग ये स्टूडेंट्स ना वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझते हैं, और उनके एब्सेंस पर भी बच्चे उनके काम करते हैं. फिर भी चिल्ड्रन क्या हैं, ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. किसको? मिस्टर हैरिस को, राइट. उनके पीठ पीछे भी उनका काम करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट फिर भी चिल्ड्रन उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. ही इज़ अ गुड टीचर बट at a loss of good character. He's a very good teacher, but he's at a loss of good character. He enjoys students speaking badly about a teacher. तो वो बहुत इंजॉय करता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं अपने टीचर के बारे में. एंड ऑल्सो मोटिवेट्स देम टू स्पीक मोर बैड ऑफ द टीचर instead of telling them that making fun of the teacher. So instead he should stop him from making fun of the teacher. He actually talks a lot about the teacher and making fun of them. Imitating a teacher and talking behind the back of a teacher, anyone is bad. Okay, children. So he's a good teacher, but the character is not good. Okay. So children, I hope you have understood the whole chapter in its short form and character sketch about each and every character. Thank you, student.